Hello, dear students. Welcome to the class today. Yes, how are you all doing? Hope you all are doing fine. Children, we are carrying on with this chapter 9. Yes, the last two topics are left. A lot of new things we have learned in this chapter. Good informations. The customs and traditions that we follow in India, how much important it is and what kind of impact it has on the world scenario. This is what something that we will be understanding, we are understanding in this chapter. Our customs, traditions, something that is the identity of the people in India. India, all over the world, the language that people speak, the kind of clothes they are wearing, the family that they have, the marriage, the God, the belief, the traditions, all these things hold a very important position. So, yes, India is known for its diversity, for its culture, and for its unity. Yes, dear children, India is an example for most of the parts of the world where where we say that people are not living together, आपस में लड़ते हैं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे so many customs, so many traditions, and still so much of unity is there, so much of closeness is there. That is what. And how people have come together. Many points, many places we have understood this also with a special reference to the Jagannath cult. Jagannath cult, one thing and one practice that was very common and very popular in Orissa. But now, children, you can see it is celebrated all over the world, isn't it? So that makes it very unique. That makes it something that is, not very well known. But then other parts of the world also appreciate it. Britishers had come. They also used to respect the feelings of the people in Odisha with the Jagannath cult. Got it? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं in the last video? Yes, let's come back now. We are talking about a closer. I'm sorry, it is looking like D. No, it is not D. I'm sorry, children. It is a closer look. पास से समझने की कोशिश करेंगे. किस जगह को समझने की कोशिश करेंगे? Children, it is Bengal. Got it? We will understand the customs and traditions in Bengal. Customs and traditions नहीं, with a special reference to language. ठीक है? We are talking about Bengali language. Got it? How this language had spread, what is the background of this language, and people क्या say, Chinese traveler had come here and he had gone to many places in Magadh, many places in Bihar, Bengal, and he is the one who has given this idea to us that before the Bengali language, the language that was spoken in Bengal was Sanskrit. Isn't it amazing? Sanskrit language in Bengal. But yes, that's the truth. And that is how it was carrying on. Okay, and who was this person who has given this information to us? Chinese traveler Xuanzang. ओके, Xuanzang ने हमको ये सारी चीजें बताई हैं. He saw that the languages that were related to Sanskrit, all over Bengal, people were speaking that language. Some language that was very much identical to Sanskrit language was spoken in Bengal. And there was cultural ties. The people from Bengal had culture, traditions, becoming closer,
had a deep contact with Bihar and Jharkhand. Present day Jharkhand, पहले तो सारा बिहार ही था. It was all Bihar. Okay. So from 8th century onwards, what happened? ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं. Gave information. बंगाली लैंग्वेज के बारे में जो हमको पता है, वॉट एवर वी नो अबाउट बंगाली लैंग्वेज, हमको किसने बताया है? इट इज वन जैंग हु हैज गिवन अस दिस इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, 8th सेंचुरी से फ्रॉम 8th सेंचुरी बंगाल के ऊपर में देयर वेर सम रूलर्स हु वर रूलिंग इन बंगाल एंड दे वेर द पालास. पालास के बारे में भी ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2. ओके, सो बंगाल in 8th century, Bengal became the capital of Pala rulers. Okay, इनका नाम था, मतलब the dynasty was known as Palas. Palas rulers. 14 से मतलब काफी दिन तक, for many years in Bengal, the rulers were the Palas. And from 14th to 16th century, Bengal was ruled by sultans. I mean, Muslim rulers were there. The Muslims have captured this area and they started ruling. So it was ruled by sultans. 14th to 16th century. This was 8th century. And here is 14th to 16th century. Okay. Ruled by Muslim rulers were there, but very well they have ruled. काफी अच्छे से रूल किया. ठीक है, दिल्ली से इनका कोई मतलब नहीं था. They were not under the Mughals. They ruled separately. इनका separate rule था, separate system था, and they looked after Bengal in a very proper manner. बहुत अच्छे से इन्होंने बंगाल की देखभाल की. And Bengal was such a region. Bengal was so rich in resources, in culture, in customs, traditions, that every ruler in India, जितने भी इंडिया में रूलर्स हुए, they once upon a time wanted to capture Bengal. They wanted to rule Bengal. हमेशा उनके दिमाग में एक बात होती थी कि वो बंगाल के ऊपर कैसे कब्जा करें, बंगाल को कैसे रूल करें. As a result, 1586 में अकबर कॉन्कर्ड बंगाल. ओके, अब ये थोड़ा सा याद रखना, डेट याद रखना. इन 1586 अकबर कॉन्कर्ड बंगाल. Now what happened? They formed the nucleus of Bengal Suba. Bengal को he divided into many parts. Okay, so Bengal, please understand that Bengal was divided into subas. Whole Bengal. Suba is one. क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट. टुडे वी कॉल डिस्ट्रिक्ट. वाराणसी इज अ डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में बहुत सारे गांव हैं, छोटी छोटी सिटीज भी हैं, बट वाराणसी इज अ मेजर सिटी, मेजर डिस्ट्रिक्ट. सो वाराणसी वाज अ सूबा. ओल्डन डेज में अगर हम उस समय के 14th-16th सेंचुरी की बात करें तो दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज अ सूबा. होल बंगाल केम अंडर, नहीं सॉरी, was divided in subas. ठीक है, it was the name of the district. अब लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज समझने के लिए ना, किसी भी जगह की अगर हमको लैंग्वेज समझना है तो वहाँ की हिस्ट्री समझना थोड़ा ज़रूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस फर्स्ट. तो अगर हमको हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी तो हम बाकी की चीज़ें भी आराम से कर पाएंगे.
पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बंगाली वॉज द रीजनल लैंग्वेज, मतलब वहां के लोग जो बोलते थे वही खात आई मीन किताब कॉपी पे जो काम हो रहा है, वॉट एवर वॉज डन इन द रिटन मैनर दैट वॉज डन इन पर्शियन. ओके, सो पर्शियन वॉज लैंग्वेज ऑफ administration and Bengali was regional language. Bengali was regional language. Please understand. ओके, अब ये क्या हुआ कि 14-15 सेंचुरी के आसपास बंगाली ग्रुप केम टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज. हाँ, क्या हुआ कि मेरी देखो व्हाट हैपेंस इज, जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी ऑल्सो हैज गॉट अ डिफरेंट फॉर्म. What Hindi you are speaking in Varanasi, same Hindi you will speak in Jaipur, but you will find difference. Are you understanding? Same language, but in different regions, the way the language is spoken is a bit different. थोड़ा सा अलग होता है. Got it? तो Bengali group में dialects came to be united. Common language was there, जो कि western part में बोला जाता था. In Bengal, the western region of Bengal, the language that was spoken there, it was only spoken all over, and this area was called as West Bengal. Okay, common language based on the spoken language. Common language. ठीक है, common means देखो everybody is speaking that language. Common language was based on the spoken language of, was based on the spoken language of West. उस एरिया में I'm talking of the Bengal region. Bengal region में भी what was the language that was spoken in the western area, that became the common language all over. Okay, language of West became common, and this area, और यही जो एरिया था ना, this area came to be, क्योंकि पूरा वेस्ट was occupying all those places. Western region was occupied by those places. बस वेस्टर्न रीजन में जो चीजें हो रही हैं वही सारे तरफ हो रही थी, तो इट वॉज नोन एज, एंड दिस वॉज नोन एज वेस्ट बंगाल. क्या कहते थे? वेस्ट बंगाल. Okay, now West Bengal came up. लेकिन क्या हुआ? The Bengali is derived from Sanskrit. Though Bengali is derived from Sanskrit, people say that the language, the base of the Bengali language, it has derived from Sanskrit. लेकिन there has been changes all through. Okay? एक लैंग्वेज की कितनी कहानी है, आप ये सोचो. what I'm trying to say is one language has got such big story. छोटा सा क्या है, का भाषा ही तो है, भाषा ही तो बोलते हैं, लेकिन कहानी कितनी बड़ी है इस भाषा की, ये समझने की कोशिश करो. Got it? Okay, now please understand कि one Bengali is derived from Sanskrit. बंगाली लैंग्वेज जो है पहले से हम पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज derived
from Sanskrit. Got it? But it has gone through a lot of evolution. But it has gone through evolution. Now, what is evolution? Evolution, please try to understand. Evolution is the different phase through which something has seen changes. एक वो तरीका, एक वो फेज जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. ओके, एंड वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स, मतलब जो ऐसे भी वर्ड्स हैं बंगाली लैंग्वेज में. इन द बंगाली लैंग्वेज देयर आर सच वर्ड्स ऑल्सो विच हैज नो ओरिजिन टू संस्कृत. ठीक है, एंड इट हैज गॉट ओरिजिन. कहाँ से आए हैं ये वर्ड्स? मेनी वर्ड्स आर देयर. You know, a very funny thing is there. I just wanted to share it with you. One of my uncles was there. He always used to find out Hindi words from the English language. Like if I say कि in English language we call, what do we mean by DUST? तो आप कहेंगे मैम इट्स डस्ट. डस्ट मतलब कूड़ा बालू, पूरा मतलब जो मिट्टी विट्टी होती है, दैट इज डस्ट. My uncle used to say, it's not dust. वो बोले वो डस्ट नहीं है बिटिया. क्या है? वो दुष्ट है. दुष्ट, DUST, दुष्ट. दुष्ट को उन्होंने अपने पास ले लिया और उसको डस्ट बना दिया कि धूल मिट्टी जो है वो डस्ट. डस्ट नहीं है, वो हमारे शब्द से उन्होंने अपने पास शब्द लिया है. Got it? That is how people connect to language. लैंग्वेज का कनेक्शन यही है. ओके, इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर साइड. थोड़ा सा एक फनी बनाने के लिए मैंने आपको बताया. ओके, सो लॉट ऑफ वर्ड्स इन बंगाली लैंग्वेज do not have Sanskrit. संस्कृत नहीं है तो क्या है? इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बहुत सारे, यू नो, बंगाल में लॉट ऑफ जंगल्स आर देयर, लॉट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज आर देयर. फॉरेस्ट में कौन रहता है? यस, इन फॉरेस्ट ट्राइबल्स लिव इन फॉरेस्ट. जंगल वाले जो ये होते हैं, द ट्राइबल पीपल हु आर देयर, दे स्टे इन दिस फॉरेस्ट एरियाज. ओके, सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम tribal language, Persian, European languages. They have become part of modern Bengali. Bengali में these languages have also influenced, intruded. Got it? So tribal language, Persian, got it, and European languages. European languages have become a part of modern Bengali. Okay, have ये तो डिराइव नहीं है, हम ये सेंटेंस इज डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, सो बंगाली में many words are there which has been taken from tribal language, from Persian, from European language. That is what is the influence. अब ये बंगाली लैंग्वेज को जो है we will be dividing it into two categories. Two categories are there. Bengali language में भी different people have given their contribution in the development of Bengali language. Different people have contributed. So here we understand, I'm sorry, Bengali language has, क्योंकि क्या होता है कि जब लैंग्वेज लिखते हैं तो बहुत सारी उसमें देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च वर्क दैट गोज ऑन इन द लैंग्वेज.
So it is divided into two categories. One is Sanskrit has two categories. Okay. एक तो संस्कृत है, संस्कृत, एंड यहां पे मैं कोई वर्ड यूज नहीं करूंगी, नॉन संस्कृत, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज का नहीं मतलब है, लोकल लैंग्वेजेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। एक टाइप ऑफ भाषा है। पहला है ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, बड़ी बड़ी जो बुक्स थी, ऑल द बुक्स दैट आर देयर, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, संस्कृत की जो पुरानी किताबें हैं, ठीक है, लाइक मंगल काव्य, मंगल काव्यास, मंगल जो भगवान को डिवोटेड है, थिंग दैट इज डेडिकेटेड टू गॉड, ओके, उसमें देयर आर पोएम्स रिलेटेड टू गॉड, डीलिंग विथ लोकल भगवान जो वहां के हैं, ओके, ठीक है, मंगल काव्य, पोएम्स ऑन गॉड्स, मंगल काव्य, मंगल का मतलब ना समथिंग दैट इज ऑस्पिशियस, एंड देन भक्ति लिटरेचर लाइक बायोग्राफी ऑफ चैतन्य देवा, द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इज नॉन संस्कृत में बायोग्राफी ऑफ, क्योंकि बायोग्राफी वो किसी की लाइफ पे जो स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ चैतन्य देवा, चैतन्य देवा इज द मेन डीटी देयर, उनके जो भगवान है ना उसमें, मतलब कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द संस्कृत लैंग्वेज, इंक्लूजन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन बंगाली। बंगाली का में संस्कृत का अंश हमको जो मिलता है, एक तो ऑल द रिलीजियस वर्क दैट इज देयर, एंड देन द बायोग्राफी ऑफ सम ऑफ द ग्रेट सेंट्स, पहले के जो साधु महात्मा हैं उनकी बायोग्राफी में भी हमको इसका इंक्लूजन मिलता है। दूसरा क्या है, नाथ लिटरेचर, ओके, अ न्यू काइंड ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड which was called as Nath literature. नाथ लिटरेचर में क्या था, सॉन्ग्स ऑफ मैनामती, गोपी चंद्र, स्टोरीज ऑफ द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, फेरी टेल्स, फोक टेल्स, बैलेज, ओके। नाथ लिटरेचर में क्या था, प्लीज अंडरस्टैंड, एक तो हो गया संस्कृत वाला जिसमें कि एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू रिलीजन वाज मेंशन्ड, धर्म से रिलेटेड जो चीजें मेंशन है वो आ गई आपके मंगल काव्य, इन ऑल द मंगल काव्य, प्लीज रिमेंबर द नेम मंगल काव्य। अदर वन वाज द नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर में क्या था, पोएम्स, डिफरेंट पीपल हैव रिटन लॉट ऑफ पोएम्स, ठीक है। तो सॉन्ग्स ऑफ मैनामती, सॉन्ग्स ऑफ मैनामती, गोपी चंद्र, ये राइटर्स के नाम है। दीज आर द नेम्स ऑफ राइटर, दीज आर नॉट द सेम्स, ये मत सोचना ये भी साधु संत है, नो नो नो, दीज वेर द राइटर्स, इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, ठीक है। मैनामती, गोपी चंद्र, ओके, and the leaders like stories concerning the worship of Dharma Thakur, stories of Dharma Thakur, fairy tales, folk tales, fairy tales,
फोक टेल्स. व्हाट इज फोक टेल? गांव गांव में भी लोग होते हैं जो कहानियां सुनाते हैं. हर एक गांव की अलग कहानी होती है, हर एक गांव का अलग कल्चर होता है. तो एक तो वन वॉज द ट्रेडिशन ऑफ द स्टोरीज, that is Mangal Kavya, that was related to gods, and other was the story by of these people. ये था, रिमेंबर भक्ति, अभी हमने भक्ति ट्रेडिशन पढ़ा. नाथ, जोगी, सिद्ध, these were the naths who were found, bhakti saints from the local Bengal, from the Bengal. एंड इन्होंने क्या किया, बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस किए. एंड पहला वाला जो है ना, जो हमारे पास पहला वाला, द वन दैट वी वर टॉकिंग, मंगल काव्य. पहला मीन्स मंगल काव्य. मंगल काव्य के बारे में वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर देयर. लेकिन जो दूसरा वाला है ना, वो खाली ऐसी बात के थ्रू, गाने के थ्रू, इट हैज रीच्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. ओके, ईस्टर्न बंगाल में बहुत पॉपुलर था, जहाँ पे कि ब्राह्मण्स वेर वेरी वीक. गॉट इट? नाथ एंड देयर लिटरेचर, उससे रिलेटेड देयर आर सम पैसेजेस. आई वुड लाइक टू शो दैट टू यू. So students, Bengal and the language, ठीक है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ मैम के थ्रू. व्हाट आई वांटेड टू टेल यू चिल्ड्रन, ये आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल. मैं टुडे व्हाट आई हैड डिस्कस्ड इन द वीडियो, वहाँ पे कंटिन्यूअसली वन वर्ड वाज कमिंग, एक शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा था, एंड दैट वाज वेस्ट. वेस्ट वेस्ट. हम इसको वेस्ट क्यों कह रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड. क्या हम वेस्ट बंगाल के बारे में बातें कर रहे हैं? आर वी रियली टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल या उसकी लैंग्वेज? इट्स नॉट दैट. जिस समय की हम बात कर रहे हैं, द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, एट दैट टाइम दिस वॉज द होल बंगाल. ये पूरा बंगाल था. दैट टाइम देयर वॉज नो बांग्लादेश. भी बना है 40 years back. So when Bangladesh was not there 50 years back, तो this was all Bengal. And Bengal में अगर आप देखेंगे तो this is north, this is south, this is east, and this is west. Got it? On that basis, we have segregated the West Bengal. फिर क्या हुआ, देयर वॉज पार्टीशन इन बंगाल. बंगाल में ये पार्टीशन हो गया, दो भाग में चला गया. ईस्ट बंगाल बिकेम बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल इज स्टिल विथ अस. आज जिस एरिया को हम बंगाल कह रहे हैं, द एरिया विच इज़ कॉल्ड एज बंगाल, दिस एरिया रिमेन्ड विथ अस व्हेन बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड. तो आज तक इसका नाम वेस्ट बंगाल है, बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम this was in the western region of Bengal. ठीक है, it was lying towards the western region, इसीलिए आज भी हम इस. Now just see what I wanted to talk. ये बार बार मुझे दिखाना पड़ता है आपको मैप. Now we are talking about the language. Let's talk about language. ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था. वी हैव डन इट येस्टरडे. दिस यू हैव ऑलरेडी सीन येस्टरडे. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड द पैसेज दैट आई वाज सेइंग. आज हमने डिस्कस किया अबाउट मैनामती, गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर. सो हु वॉज मैनामती, गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर? ठीक है, दीज वेयर द नाथ्स, एसेटिक्स, who engaged in a variety of yogic practices. बहुत तरीके के काम करते थे ये. It was related to religion. Lot of religious practices were there. तो particular song during मैनामती के टाइम पे एक अलग तरीके का एक गाना होता था. She encouraged her son गोपी चंद्र. उन्होंने कहा कि दुनियादारी छोड़ दो, जस्ट लीव व्हाट इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ केप्ट इन दिस वर्ल्ड.
Why do you stay in this world? What is to be done in this world? And path of asceticism. साधुवाद का रास्ता अपनाओ. धर्म ठाकुर कौन थे ये? ही इज़ अ पॉपुलर रीजनल डीटी. वहाँ के रीजन के भगवान माने जाते थे एंड ही इज़ वॉज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और पीस ऑफ वुड. पत्थर में की मूर्ति बना के या वुड की मूर्ति बना के धर्म ठाकुर की पूजा की जाती थी. तो मायनामती ऑलवेज टोल्ड हर सन कि आप क्यों इधर उधर की चीज़ें करते हो, जस्ट फॉलो द धर्म ठाकुर. गॉट इट? दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी धर्म ठाकुर एन्जॉयड. ठीक है, यही दिखाना चाह रही थी मैं. टिल देन चिल्ड्रन, अभी नेक्स्ट क्लास में विल बी मीटिंग. टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.